Hello students and the viewers. Today I will let you know how can we expand our ideas and thoughts. As you know, commonly if I ask you please tell me something about yourself, then you are telling okay, because you can learn by heart and you can tell that also. The interviewer is asking you or the teacher is asking you okay, please tell me your daily routine work. What do you do every day? Okay, this type of questions are there. Very often they ask you what do you do every day? Now you are telling your daily routine work, right? Now that is in a sequence you do the work, isn't it? First of all, you get up. You can say, "Just I get up early in the morning by 6. Then I go for a morning walk. I come back. I get fresh." In this way, in a sequence, you are telling the sentences. Okay. Then finally, the finishing point comes morning to evening in this way, and your concentration is towards the framing. How can I frame the sentences? The tenses. Which tense? Simple present tense you are using. Isn't it? Simple present tense. Daily routine work, simple present tense. What did you do yesterday? Then what you are doing? Which tense? Simple past tense. Similarly, if I ask you what will you do? What is your future planning tomorrow or in next coming Sunday? What is your planning? Then you are telling your future tense, isn't it? But in this, what happens? Only we are using the simple present tense, simple past tense, and simple future tense. In these way, three tenses. But here, is it possible to combine all the tenses in your expressions? Possible or not? Yes, possible. It is possible. It is possible. How can it possible? Model. No. Suppose here is a, you see, try to understand the reality. This is from Delhi to railway goes to Kolkata. Single track, suppose karo, and another from Delhi to any other place. Delhi to Mumbai, Delhi to Ahmedabad, different places it goes. So if the train starts from here, and definitely it will reach to that particular place because there is no option to change the track. नहीं है, suppose करो. Then if it starts from here, then it will end over here, isn't it? Similarly, यहीं से start करके आप जा रहा हो कहीं, so that is a particular track you are traveling. You can't change because you don't have the technology, you don't have the idea. How can I change it? ठीक है, तो what we do, what is there in a single track in different direction dimensions are there, we can go to different directions. If it is technology is there, technology is applied. नहीं तो आप यहाँ से हम when we go from Delhi to different places, so in a same line in a particular place diversions are there. We go to different places in different directions. Okay, so that is called network. A network is there. Okay, and all the stations are connected with the help of these networks. Try to understand what I am going to try to explain it. हम जो सोचते हैं, हम जाने किसी एक जगह में जाने का, हम कोलकाता जाते हैं, यहाँ से आप यू आर फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, तो क्या यह कि ट्रैक इसी कोलकाता के लिए ही है और कहीं नहीं जा सकते हो क्या? कैन यू नॉट गो टू एनी अदर डायरेक्शन? वी कैन गो. तो इसके लिए टेक्निक है, तरीका है कि यहाँ पे रूट चेंज करना होता है, जंक्शन होता है, वहां पे चेंज होता है, चेंज करके फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर इन दिस वे नेटवर्क फैला हुआ है वो ऑल ओवर इंडिया, है ना? कोशिश थिंक करो. तो मैंने अभी क्या कहा कि आप यू आर टेलिंग योर डेली रूटीन वर्क मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो एक ट्रैक में आपने चला, ना पास्ट आया ना फ्यूचर. सिमिलरली इफ यू आर टेलिंग यस्टरडेज रूटीन वर्क, so you are telling morning to evening. So can you speak English in this way? क्या is it possible कि मुझे डेली रूटीन वर्क और यस्टरडेज रूटीन वर्क टुमारोज रूटीन वर्क करके मैं इंग्लिश बोलूं? नॉट पॉसिबल. तीसरे पॉसिबिलिटी क्या है?
क्या हमें देखना पड़ेगा कि हाउ कैन आई चेंज द ट्रैक, यानी प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर, ओके, इन दिस वे वी नीड टू चेंज। इसीलिए मैं बताता हूं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स व्हेनेवर सपोज यू वांट टू टेल आई गेट अप अर्ली, बोल दिया डेली आई गेट अप अर्ली, कौन सी अर्ली? अर्ली, अर्ली इज योर व्हाट? एडवर्ब। तो एडवर्ब हेल्प्स यू टू एक्सप्लेन द फर्दर सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस जो अब अर्ली बोला आपने, आई गेट अप अर्ली बाई 4, 5, सो अर्ली, बाई 4 बोला तो सो अर्ली। तो आप देयर आफ्टर यू कैन टेल द रीजन, अंडरस्टूड? आपका सेंटेंस है यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली बोला, रीजन बताओ। अर्ली शब्द में अर्ली इज एन एडवर्ब। आई टोल्ड यू कि वी नीड टू ऑब्जर्व द सेंटेंस स्ट्रक्चर। से एज आई टेलिंग यू कि हाउ कैन वी चेंज द ट्रैक, डायरेक्शंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑल। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन वी चेंज द ट्रैक, यानी डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस को हम सेंटेंस में शामिल करना होता है। एक ही टेंस में हम सिर्फ डेली रूटीन वर्क बोल सकते हो, यस्टरडे क्या क्या ये बोल सकते हो, टुमारो आप क्या करोगे, तो सारे अलग अलग है। तो कॉन्वर्जेशन ऐसे नहीं होता है। वी व्हेनेवर वी इंटरेक्ट, व्हेनेवर यू टॉक टू इन योर मदर टंग, कि हमें एक साथ जैसे बात कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे टेंस, कोई भी टेंस आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टेंस में आप बात कर रहे हो। यू आर मीटिंग, सपोज करो, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यू आर मीटिंग वन ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन द वे, रास्ते में, कॉमन बात है। तो जैसे ही हमने मिला तो क्या करते हो हम क्या करते हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विश करते हैं, हेलो करते हैं, जो भी है हमारी। तो इन इंग्लिश इज आल्सो समथिंग दैट यू हैव टू, इट इज मोर इन इंग्लिश, फॉर्मेलिटीज आर देयर इन मोर। ओके, ये सारे फॉर्मेलिटीज के बाद आप क्या पूछते हो कॉमनली? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्या कर रहे हो, फिर कहाँ गए थे। देखो तुरंत हमने टेंस चेंज कर दिया। कहाँ जा रहे हो एक टेंस है, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे। 1 मिनट का डिस्कशन में सारे टेंस मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है, isn't it? ध्यान से समझ कोशिश करो। तो इन इंग्लिश इज ऑल्सो लाइक दैट। क्या हम सिर्फ एक टेंस पढ़ के लर्न करके रूल्स लर्न कर लिया और मैं इंग्लिश में बातें करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, हमें हाउ कैन आई डू इट देन, व्हाट इज द प्रोसेस? सपोज इन ए फर्स्ट सेंटेंस यू आर टेलिंग ए सेंटेंस एवरी डे आई गेट अप अर्ली, या तो यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली बोला, तो यस्टरडे जैसे लग गया, तुरंत आपने गॉट अप लगा दिया, ये तो टेंस है, ये ध्यान देना पड़ेगा। यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली, देन आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये हमने सीक्वेंस, वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक। आपने जो फर्स्ट सेंटेंस बोला यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली, तो अर्ली शब्द में कितने अर्ली आप उठते हो तो आप ही जानते हो। आई यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली बाई 5, बाई 4, 7, 8 कोई अर्ली नहीं होता है। आप 4 या 5 में उठो तो वो अर्ली। तो गॉट अप अर्ली एज आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, आपने एज लगा के फिर बिकॉज भी लगा सकते हो। तो यस्टरडे आई वेंट बोला, सिंपल पास्ट टेंस। अब बिकॉज जैसे लग गया और एज लग गया कंजंक्शन, तो आपने ट्रैक चेंज करके प्रेजेंट टेंस में आप यूज कर सकते हो। आई एम हैबिचुअल, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, बिकॉज आई, रीजन क्या है मॉर्निंग वॉक जाने का, जो आप जाते हो रोज आप जाते हो, तो इसका रीजन तो है आई एम हेल्थ कॉन्शियस, मेरा शरीर पर मैं बहुत ध्यान रखता हूं, सो दैट्स व्हाई आई डोंट गेट अप लेट। एवरी डे आई गेट अप अर्ली बाय 5, देन आई डू योगा। यस्टरडे ऑल्सो आई डिड। देन यस्टरडे टाइम टेबल में प्रेजेंट भी आ रहा है साइमल्टेनियसली, लेकिन एक जरिया है, एक माध्यम तरीका है कि वी आर यूजिंग द कंजंक्शंस। अगर कंजंक्शंस ना हो, रियल रूट में अगर जोड़ ना हो, एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, तो हम ट्रैक चेंज नहीं कर सकते हैं।
हम जाना है कोलकाता, हम चले जाएंगे मुंबई, अगर वो एक ही ट्रैक में चलेंगे तो नहीं होता है ऐसे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ कैन वी यूज द कंजंक्शंस, हाउ कंजंक्शंस हेल्प अस, ऑल द कंजंक्शंस दे हेल्प अस टू फ्रेम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट के साथ पास्ट के यूज करो, पास्ट के साथ फ्यूचर यूज करो, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस, रिमेंबर। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो जब तक आप कंजंक्शंस यूज नहीं कर रहे हो, यानी क्लॉज यूज नहीं कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, क्लॉजेस होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्लॉजेस होते हैं। तो अगर देखा जाता है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस हमारी प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है, जरूरी नहीं है कि सेकंड पार्ट जो है वो भी प्रेजेंट में होगा, नहीं, फ्यूचर में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, मोड़ा किसी में भी हो सकता है। ये टेक्निक है हमारे पास, इसलिए हमें कभी भी कोई, वी आर नॉट फेसिंग एनी ट्रबल। इफ यू वांट टू टेल एनीथिंग दैट यू कैन टेल, ओके, एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने कहा कि आप पूरे यस्टरडे व्हाट डिड यू डू, देन यू आर टेलिंग यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली by sea because I go for a morning walk every day. Yesterday also I went. Okay, by the weekends I don't go. Okay, Saturday Sunday mostly I don't go. During the weekdays I go. फिर क्यों जाते हो, कहाँ जाते हो, that you are telling कि when so mostly I go to the stadium. Oh, mostly I go to the stadium. Sometimes I go to the park nearby. Okay, mostly sometimes what, all these are what, adverbs. ये adverbs से हम sentence बदल भी रहे हो, एंड जैसे sometimes, mostly, frequently, daily, all these are the adverbs of simple present tense. Okay, yesterday, last Sunday, last time, all these are the adverbs of what, past tenses. जैसे हमने इसको चेंज करने के लिए हमने एक कंजंक्शन के यूज किया, बट, बिकॉज, ओके, सिंस, WS family, so many conjunctions are there, what, where, when, why, who, whom, which, ये सारे जो conjunctions है, इससे हमें क्या करते हैं, हम टेंस चेंज करते हैं। दैट्स वाई ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वही आप योर डेली टाइम टेबल, यस्टरडेज टाइम टेबल करके आप इंग्लिश स्पीक कर पाओगे। दैट्स वाई रिमेंबर दिस कि हाउ कैन आई एक्सपांड द आइडियाज एंड थॉट्स विद द हेल्प ऑफ all the conjunctions. That's why you should understand. Mean, at least first of all you should do make the sentences with compound sentences. These compound sentences you can start with your coordinating conjunctions. These coordinating conjunctions are our and. देखो, ये coordinating conjunction से आप sentence कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या है, एंड, बट, सो, बिकॉज, सिंस, व्हाइल। ओके, ये सारे कंजंक्शन से हम क्या करते हैं, सारे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए नाम है कोऑर्डिनेटिंग। कहाँ पे करते हैं, एंड, बट, सो, एंड, बट, सो, बिकॉज अर्लियर ऑल्सो यू मे गो थ्रू द योर videos. Okay, conjunction videos are there. But how can I change use and when two positive sentences are there? First sentence is I get up early and go for a morning walk. Yesterday I got up early and went for a morning walk. And लगते ही second sentence जो है वो positive sentence होना जरूरी होता है। Okay, but कहाँ पे यूज करते हैं हम, yesterday I got up early but I didn't go for a morning walk. Daily I get up early, daily I get up late, so I don't go for so, इसीलिए तो so एक रीजन शो भी करता है। I get up late, so I don't go for a morning walk. मैं लेट उठता हूं तो इसीलिए मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जाता हूं। ओके, एंड, बट, सो, बिकॉज, बिकॉज लगाओ,
You are health conscious. I get up early because I go for a morning walk every day. Because. So in this way, all the coordinating conjunctions are there. You try to use them in sentences. In written English में इसको try कर सकते हो, लिख सकते हो रोज. Okay. और in this way जो coordinating conjunction का use आपका हो गया. Thereafter you have to think for complex sentence conjunction, subordinating conjunction. These subordinating conjunctions play the most important roles in sentences. Okay, so present to past, past to future, future to any. Just now I am showing you. You can get to know okay, how can I do it. Let us see. See, simple any tense, any sentence that may be transitive or intransitive. Here it is intransitive. I don't understand. मैं नहीं समझता. किसी के बारे में बात चल रहा है, किसी के बारे में आप बोल रहे हो या आप सुन रहे हो कि no, I don't understand. I don't understand what you are saying. So what are you saying or what you are saying? Tell me, think करो. What are you saying? I don't understand what are you saying. What are you saying? What you are saying. What you are saying. Because it is a complex sentence. And what is a conjunction? Conjunction के तुरंत बाद एक subject चाहिए. What are you saying नहीं, full stop है अंत में. What you are saying. Okay, what is a conjunction? आप क्या बोल रहे हो, मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हो. तो आप क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है. What you I don't understand. That's why ये जरूरी है समझना कि whenever we are using a subordinating, इसे कहते हैं subordinating conjunction. Okay, I don't understand what you are saying. तो what, then subject, then main verb. ये हमारी sentence structure फॉर्मूला है. Okay, अगर इसे हम चाहे तो जो this part, it is called a clause. इसे हम clause कहते हैं. Okay, ये clause part है. Subordinating part is clause. ये principal clause है. I don't understand. मैं नहीं समझता हूँ. अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए I don't understand what, मैं नहीं समझता. क्या नहीं समझते हो? What you are saying, जो आप बोल रहे हो. What मतलब क्या नहीं, जो की आप बोल रहे हो वो मुझे नहीं समझ में आता है. तो ये टोटल देखा जाए इस सेंटेंस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. ओके, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, आप यहाँ पे व्हाट यू आर के जगह वेयर लगा दो. व्हाट यू आर सेइंग, फिर यहाँ पे यस्टरडे लगा दो. What you were saying yesterday. I don't understand what you were saying yesterday. What you told yesterday. What you told yesterday. Any tense. I don't understand what will you do. What you will do in your future. मुझे नहीं समझ में आता है कि आप भविष्य में क्या करोगे. ओके, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो कि सेंटेंस को हम कैसे ही अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं. मैंने अभी बताया, एग्जांपल दे रहा था कि सेंटेंस सिर्फ डेली रूटीन और के कोई भी अपने बताया, इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं हो जाएगा. वो तो उसे इट इज नेसेसरी टू नो द टेंसेस. दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल. ओके, हाउ कैन आई फ्रेम द सेंटेंस एज सिंपल सेंटेंसेस, दैट इज नेसेसरी. बट हाउ कैन आई चेंज द ट्रैक अपने जरिए से कैसे. दिस इज द वे, इन दिस वे. ओके, जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, अगला सेंटेंस क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. व्हाट यू विल बी डूइंग इन योर लाइफ. आई डोंट अंडरस्टैंड. जैसे फादर पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हारे क्या तुम बोल रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो, करोगे क्या, तुम करोगे क्या, मुझे नहीं कुछ समझ में आता है. तो ये जो है इसे नाउन क्लॉज कहते हैं. ये जो क्लॉज है, अगर क्लॉज के सेंस में देखा जाए तो ये नाउन क्लॉज है. व्हाट क्वेश्चन पुट करते हैं, जो जवाब मिलता है, अगर उनमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
if we get a subject, if we get a finite verb. तो ये तीनों चीज देखो यहाँ पे कंजंक्शन है ना. What is the conjunction here? And you is subject, I, we, you, he, she, all these subjects. Were saying, बोल रहे थे, वो मेन वर्ब है. तो क्लॉज पार्ट में हमें तीन चीज हमेशा मिलता है, वो है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, कंजंक्शन, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. गॉट इट. एंड आप जितने भी चाहे मर्जी से आप सेंटेंस सारे टेंस में आप चेंज करके देखो ना, बन जाएगा. एवरी टेंस इज पॉसिबल हियर. व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल बी डूइंग. ओके. अब छोड़ो व्हाट, देखो अब मत सोचो कि केवल आई डोंट अंडरस्टैंड के बाद केवल व्हाट ही एक कंजंक्शन है. हाउ भी हो सकता है. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ. So all the WS families, WS फैमिली में देखो अभी तो हमने देखा कि व्हाट से हमने सेंटेंस बनाया. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, व्हाट यू सेड यस्टरडे, व्हाट यू विल से. आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर, वेयर ही गो. आई डोंट अंडरस्टैंड के बाद ये वेयर कंजंक्शन हो गया. आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर ही विल गो, वेयर ही विल लिव, व्हाट ही विल डू. आई डोंट अंडरस्टैंड. जैसे पेरेंट्स में बात हो रहा है अपने बच्चों के बारे में. ओके, पढ़ाई तो करता नहीं, वो करेगा क्या. आई डोंट अंडरस्टैंड. पापा बता रहे हैं घर में, तो मुझे नहीं समझ में आता ये बच्चा करेगा क्या फ्यूचर में, व्हाट ही विल डू इन हिज फ्यूचर. ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर ही विल गो. ओके, वेयर ही विल गेट द जॉब, हाउ ही विल गेट द जॉब. आई डोंट अंडरस्टैंड. तो where, why, when, how, any WS family you can bring and you can change the tenses as per your own wish. ये fixed है. I understand, I don't understand. Okay. Similarly, I know, मैं जानता हूँ. क्या जानते हो? What you are telling, what you told yesterday, what you will tell me, isn't it? So in this way principal clause में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है इसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ये हमें टेंस, कोई भी टेंस में हम आप हमारी इच्छा से हम जाना चाहें जहां you have the ability, you know how to drive a car, how to ride your bike and you are on the way. So आपका मर्जी है जिस टाइम डायरेक्शन लूं. ये जरूरी नहीं है कि रास्ता इस तरफ है तो मुझे इसी तरफ ही जाना होगा. आई कैन गो टू एनी डायरेक्शन एज पर माई विश. आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश एज पर माई रिक्वायरमेंट्स, एज पर माई नेसेसिटी. मैं देखूंगा कि मुझे क्या बोलना है. एज वी स्पीक आवर मदर टंग, क्या हम सोच के बोलते हैं? क्या हम तो टॉपिक पर डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ग्रामर गलत हो रहा है, मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ, हिंदी गलत बोल रहा हूँ. नहीं, इट इज योर मदर टंग. अब जानते हो कि हाउ टू यूज. सिमिलरली इंग्लिश को ऐसे ही सोचो. ओके, वंस यू आर हैबिचुएटेड विथ योर ग्रामर, बट इनिशियली यू नीड टू ऑब्जर्व द सेंटेंस स्ट्रक्चर. एक बार दिमाग में आ गया तो उसके बाद आप करोगे ही. ओके, बिकॉज सो मेनी वेज आर देयर. हम जानते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे हम बनाएंगे तो हम किसी भी सेंटेंस के साथ किसी भी सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं. एट दैट टाइम वी विल नॉट बी फेसिंग एनी ट्रबल. तो ये ज्यादा जानना जरूरी है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जैसे मैंने कहा कि डेली रूटीन वर्क के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पॉसिबल, किसी भी सेंटेंस के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पॉसिबल. सेंटेंस में होता क्या है? वी आर गेटिंग हाउ मेनी थिंग्स इन ए सेंटेंस. वी आर गेटिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब मैंडेटरी. Object is not mandatory. Object is not mandatory, but subject and verb mandatory. वर्ब के बाद हम एडवर्ब भी यूज करते हैं. जैसे अर्ली, आई गेट अप अर्ली, बिकॉज. उसके बाद बिकॉज कंजंक्शन से आपने जोड़ दिया. बिकॉज आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक. बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है. सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग बोथ. बिकॉज एक कंजंक्शन जो कि सबऑर्डिनेटिंग भी है, कोऑर्डिनेटिंग भी है. करते ऐसे हम कंजंक्शन ट्राई करो. ट्राई टू फाइंड आउट द कंजंक्शंस, ब्रिंग द कंजंक्शंस इन योर सेंटेंस. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अगर मिल जाता है तो उसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम बोलते हैं कुछ,
Okay, then also complex sentence is possible. See how it is possible, I am showing. See, yesterday I bought a story book. तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है? मैंने कल एक स्टोरी बुक खरीदा. Yesterday I bought a. तो सेंटेंस हम यहाँ पे फुल स्टॉप डाल सकते हैं कि नहीं? डाल सकते हैं. सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल फुल स्टॉप डालते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनेगा. कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? कंजंक्शन चाहिए. तो अगर हम yesterday I bought a story book, स्टोरी बुक के बारे में अगर हम बताएंगे, इसके कंजंक्शन क्या है? which, that. तो which is very funny. हमने किसके बारे में बोला? स्टोरी बुक के बारे में बोला. तो saying something regarding a noun is your adjective. तो नाउ ये एडजेक्टिव एक क्लॉज बन गया. which एक कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है, डबल रोल, जो कि क्या है? बहुत फनी है. ठीक है. तो yesterday I bought a कौन सी टेंस है? पास्ट टेंस. is funny क्या है? कौन सी टेंस है? प्रेजेंट. फनी था तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी है वो किताब मेरे पास, बहुत फनी है. सो दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. पास्ट के साथ प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ पास्ट, फ्यूचर, कोई भी किसी भी टेंस के किसी भी. लेकिन यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? स्टोरी बुक के बारे में बता रहे हैं. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव. प्रीवियस एग्जांपल में क्या दिखा था? नाउन क्लॉज दिखा था. यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है. तो ये सारे क्लॉज को भी हम फ्रेज में बदल सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट ऑल द क्लॉजेस इनटू फ्रेजेस. ये मैं एक क्लास दूंगा आपको कि क्लॉज को कैसे फ्रेज में बदला जाए. तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. यहां पे देखो, आई बॉट ए स्टोरी बुक विच इज वेरी फनी. तो ये वेरी फनी को अगर हम यहीं पे यूज कर दे, यस्टरडे आई बॉट अ वेरी फनी स्टोरी बुक, दैट वेरी फनी इज योर एडजेक्टिव फ्रेज. ओके, तब हम क्लॉज को हटा देते हैं. विच को हटाओ, ये सारे हटा के सिर्फ फनी यहीं पे जोड़ दो. यस्टरडे आई बॉट ए फनी स्टोरी बुक. खत्म. दो को जोड़ना, जो कंजंक्शन से जोड़ो, ये जरूरत नहीं है. सो वी कैन मेक इट फ्रेज. दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. सिमिलरली नाउन क्लॉज को नाउन फ्रेज में बदल सकता है. हम कर सकते हैं सभी क्लॉज को. ओके, न्यूज़पेपर में हमें क्लॉजेस कम मिलते हैं, ज्यादातर हमें फ्रेजेस मिलते हैं. वी गेट द फ्रेजेस. ओके, इडियम्स, फ्रेजेस आर रिटन. से इंप्रेसिव भी होता है, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में, लिखने में सब कुछ. दैट इज कॉल्ड इंप्रेसिव इंग्लिश. ओके, इन दिस वे ज्यादा कुछ भी नहीं है. मेन थिंग इज कि क्लॉज को आपको समझना है. क्लॉज को कैसे हम फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं. ओके, जैसे नाउन क्लॉज टू नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज टू एडजेक्टिव फ्रेज. सिमिलरली एडवर्ब क्लॉज टू एडवर्ब फ्रेज. तो एडवर्ब कहां से आता है? जहां पे कोई भी इस सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? देखो, आप यह आई बॉट ए स्टोरी बुक, आई बॉट ए स्टोरी बुक विच लगा दिया तो हमें पता चला कि स्टोरी बुक के बारे में हम बोल रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. अगर हम इस सेंटेंस में yesterday I bought a story book, when I went to market, when I was coming back from my school. Okay, I bought a story book from a shop, कहीं भी दो शॉप. when I was coming, जब स्कूल से मैं वापस आ रहा था, वहां से एक स्टोरी बुक खरीद लिया था. तो यहाँ पे बुक के बारे में बोल रहे हो या बॉट के बारे में? बाय, बॉट. समझ नहीं. मैं आई एम एक्सप्लेनिंग सिचुएशन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिश. हियर यू सी द ऑब्जर्व द सेंटेंस. यस्टरडे आई लॉस्ट माय फोन, मोबाइल फोन. व्हेन लिखा है, व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम माय ऑफिस. मैं ऑफिस से जब आ रहा था, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फोन. तो ये जो हिस्सा है, व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम माय ऑफिस, तो क्या फोन के बारे में बता रहे हो क्या? फोन के बारे में बता रहे हो? नहीं. व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम माय ऑफिस, तो क्या हुआ था तब? लॉस्ट. लॉस्ट के ऊपर बात हो रहा है. दैट इज खो जाना. दैट इज वर्ब.
आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उसके बारे में अगर इसके बारे में बोलना होता तो विच लगता है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता। लेकिन आप बोल किस क्या रहे हो, कब, क्वेश्चन कम्स कैसे या कब, तो कब के मतलब होता है व्हेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई ऑफिस, तब क्या हुआ, खो गया, आई लॉस्ट माई मोबाइल फोन। तो ये जो व्हेन आई लॉस्ट माई मोबाइल फोन सेज रिगार्डिंग द, not regarding the mobile, regarding the action, action is lost, that's why it is called adverb clause. ओके, तो ये सारे जो क्लॉज हम पहले हम क्लॉज बनाना सीखे कि हाउ टू फ्रेम द क्लॉज सेंटेंसेस, दैट इज कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे आई लॉस्ट सिंपल पास्ट है, यहाँ पे आई वॉज कमिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, टेंस हम बदल सकते हैं। तो नाउ व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम माय ऑफिस, ये जो क्लॉज है इस क्लॉज को भी हम फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब कंजंक्शन हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा, एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड, दैट विल बी योर फ्रेश सेंटेंसेस। Yesterday I lost my mobile on returning home. On returning returning officer na, on returning. Yesterday I lost my phone on returning home. Home returning time में मैंने lost कर दिया, तो on returning home is a phrase that is called adverb phrase. On my return और on returning home, तो ना हमें when लगा, ना सब आई है, ना was coming, ये सारे सब कुछ हटा के फिर on returning home, अरे फ्रेज that is your phrase. ओके, तो फ्रेज इज मोर इम्प्रेसिव देन योर क्लॉजेस। क्लॉज तो बल्कि है, बड़ा हो जाता है, सेंटेंस को लेंदी बना देता है, लेकिन फ्रेज जब यूज करोगे तो लेंदी सेंटेंसेस को हम शॉर्ट में फॉर्म करते हैं। सो दैट्स व्हाई फ्रेज सेंटेंसेस आर मोर इम्प्रेसिव। आई नो वेयर माई, सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो, मतलब आप जानते हो कहाँ रहता है, या आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो हिज एड्रेस, आई नो वेयर ही लिव्स, ये आपका फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है। आई नो क्या जानते हो, वेयर ही लिव्स, वेयर इज ए कंजंक्शन, ही इज सब्जेक्ट, लिव्स मेन वर्ब, वेयर ही लिव्स फ्रेज में बदल दो, आई नो हिज एड्रेस, आई नो मैं जानता हूं, वेयर ही इज गोइंग नाउ, वेयर ही इज गोइंग नाउ मैं जानता हूं कहां जा रहा है, I know his destination. I know his destination. So his destination is your phrase. That is called noun phrase. इसीलिए सारे ना फ्रेज क्लॉज को हम फ्रेज में जैसे बदलने का टेक्निक हमें दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो सेंटेंस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप बना सकते हो। Thereafter you can use them in sentences. Okay, so that is very important.